Hello, good afternoon everyone. Welcome you back in the topic squares and square root. We are going to complete the exercise today. Yesterday, for the video, one child had asked me the doubt of question number 6 that he was not able to complete it. So I'll be solving it or maybe I'll be showing you one of the question. See, I'll tell you one thing that factorization you have to know. If you don't know the factorization, all these type of questions will be going to be difficult for you. If you don't know factorization, that you tell me, we'll have a separate session on factorization. Okay, maybe 2-3 days it will take, but you will learn the factorization properly. You may need that till 10th standard. Okay, but anyway, I will just do the factorization. Any one question I will take it, maybe for a while if I think. Okay, first question itself I'll take. Easy hai. 252. So 2 ones are 2, 2s are 4, 2 6 are 2 6 are 12, 2 3s are 3 2s are 6, 3 ones are 3 7s are 7 ones are. So I have 252 as 2 square into 3 square into 7 pairing. Hope you know that. ठीक है. Now what is not making this as a perfect square? That is 7, because 7 doesn't have the square. So if I divide by 7 to this particular number, isn't it 7 7 is going to get cancelled and I'm going to get a perfect square, right? So therefore we need to divide by 7 to 252. तो डिवाइड करो 252 को 7 से डिवाइड करो. 7 3 is 21, ठीक है ना. 4 left, 2 is 7 6 is. So therefore the number is 36 and root of 36 is 6. ये आपको करना था कंप्लीट. ठीक है. उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था फिफ्थ क्वेश्चन में, एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिवाइड टू कैंसिल दैट पार्ट. दैट्स इट. एक नंबर था इसलिए 7 से किया. 3 and 2 होता तो 3 into 6 से करते हम लोग डिवाइड. तो वही है कॉन्सेप्ट, लेट मी टेल यू. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अभी these are kind of a word problem, don't worry, let us complete it. The students of class 8 of a school donated total 2401 in all for a Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. That means if there are 15 students, then the amount that each one have collected is 15. So total amount is going to be 225, like that. So don't know how much they have donated, but one thing I know that this and this is supposed to be equal. So imagine, let there be x students. ठीक है. So how much amount they have donated? Therefore rupees x is donated by each child. Therefore total amount कितना होगा, x into x बराबर विच इज इक्वल टू 2401. यही होगा ना टोटल अमाउंट. हमारा टोटल अमाउंट दिया हुआ है. x इंटू एक्स कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401. अभी हमें क्या चाहिए, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एक्स फाइंड करना है, तो स्क्वायर निकाल देना है. स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था. यू रिमेंबर दैट, टेकिंग रूट ऑफ बोथ द साइड. पाइथागोरस थ्योरम में हमने किया था, याद है. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, आई गेट एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2401. हाँ, अभी ये नहीं पता मुझे कि 2401 का रूट क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2401 को फैक्टराइज करेंगे. ठीक है ना, करते हैं. तो 2401 किससे डिविजिबल है, 2 + 4 + 2 6, 6 + 1 7. तो 3 से नहीं है. सारे प्राइम नंबर्स को देखते जाना है. ठीक है, ऑलवेज प्राइम नंबर. 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है. 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5. 5 तो है नहीं क्योंकि एंड में 5 नहीं है. 5 के बाद आता है 7. 7 देखते हैं. 7 आई थिंक यस. 7 3 = 21. 1
3 लेफ्ट 30, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21 हो गया। फिर से ये 7 से डिविजिबल होगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो 7 4 ज़ा एंड 7 9 ज़ा, देखो ये भी 7 से, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो what do I get here is nothing but square root of 2401 is 7 square into 7 square if I pair it, बराबर है। तो what is it? It is equals to 7 into 7 which is 49. Square root and square get cancelled and I am getting the answer. देखा कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो। देखो 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many number of plants as the number of rows. That means ये है आपका गार्डन, तो जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए। मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, एंड इसमें कितने टोटल प्लांट्स होंगे, तो टोटल प्लांट्स कितने होंगे, दिस इंटू दिस। मतलब ये अगर एक्स होगा तो ये एक्स होगा, तो टोटल प्लांट कितने होंगे, एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2025। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वे इस क्वेश्चन में भी करना है, कर सकते हो खुद से। देखो जितना आप लोग मैथ्स में जितना खुद से कोशिश करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। कैन यू डू इट? आई होप यू कैन डू इट। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट एंड डू इट। फाइन। 9th क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूँ। 9th के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं क्या करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे पूछे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस नंबर। सबसे पहले स्क्वायर नंबर को कैंसिल कर देते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस नंबर मतलब क्या होता है पता है? एलसीएम। यू रिमेंबर एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन डिवाइजर, मल्टीपल, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम तो हमें पता चल गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब एलसीएम को ऐसे, इन तीनों का अगर मैंने एलसीएम निकाल दिया, इमेजिन करो एक पर्टिकुलर नंबर आ गया, ये नंबर जो होगा वो तीनों नंबर से 4 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा एंड 10 से भी डिविजिबल होगा। यू गॉट इट? लिस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हो गया तो, है ना, वो मल्टीपल होता है ना इन तीनों नंबर्स का। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं एलसीएम? 3 नंबर्स को लिख लो, 4, 9 एंड 10 को लिख लिया। अभी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन करना शुरू कर दो, जो भी नंबर हो। अभी 4 है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 9 से, सॉरी 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो 9 को वैसे रखो, 10 है तो 5 से कर दो। फिर अगेन 2 2 1 ज़ा, एक बार 1 आ गया तो बाकी सारे नंबर्स ऐसे लिख लो। 9 3 3 ज़ा, ये 5 ऐसे रख लिया। 3 1 ज़ा, ये 1 आ गया, ये 5 ऐसे रख दिया एंड 5 1 ज़ा। तो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड एलसीएम। ये रहा इन दोनों, इन सब का मल्टीप्लिकेशन इज माई एलसीएम। तो माई एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये एलसीएम मेथड आपको अगर पता नहीं है तो मुझे कमेंट करो, मैं एलसीएम निकालना भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन पता होना चाहिए, नहीं है तो 100% आई विल बी हेल्पिंग यू, डोंट वरी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 9 ज़ा, या फिर 4 5 ज़ा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 9 180 हो जाएगा। ये हो गया 180 नंबर। ठीक है, तो मुझे 180 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन डू यू थिंक 180 एक ऐसा अकेला नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। 180 के सारे मल्टीपल, अगर 180 इंटू 2 करूँ, 180 इंटू 2, ये भी इन तीनों से डिविजिबल होगा। 180 इंटू 3 करूँ तो ये भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, इजंट इट? तो ये सारे नंबर्स जो 180 के टेबल में आते हैं वो सारे नंबर्स 4, 9 एंड 10 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी मुझे क्या करना है, लेकिन नंबर नहीं ढूंढना है, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो स्क्वायर हो। अभी इस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है। 180 को फैक्टराइज करो। ये फैक्टराइज क्या करो, तो है ही उधर 180 को, वही ना, 2 2 3 3 5 है ही फैक्टराइजेशन। तो 180 क्या आता है? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 आता है।
बराबर है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 आता है। इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। सो टू मेक 180 as a square we need to multiply, अरे 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 हाँ, by 5. So 180 into 5, 900 maybe, yes 900. So 900 is of course a perfect square, इसका ये 30 का स्क्वायर है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ मल्टीपल ऑफ 80. सो डन हो गया, यही तो मेरा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, इज दिस क्लियर? चलो, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 4, 4, 9 एंड 10 भी है। मतलब बेसिकली क्या है, एलसीएम कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? एलसीएम, दैट्स इट। ओके, सेम थिंग नीचे भी है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, वही क्वेश्चन है, बस नंबर्स अलग है। चलो बताओ अभी इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं पहले। देखो 8, 15 एंड 20 को सबसे पहले कटघरे में खड़ा करो और फिर डिवाइड करना शुरू कर दो, स्मॉलेस्ट नंबर से करो। सो 2 4 ज़ा 8, ये तो डिविजिबल नहीं है, 2 10 ज़ा, मिस्टेक नहीं करना, 2 2 ज़ा 4, 15 नहीं है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा, ये पॉसिबल नहीं है, 15 वैसे रखा, ये भी 5 वैसे रखा। अभी 15 को देखो 3 से डिविजिबल है तो 3 5 ज़ा 15, 3 से ये डिविजिबल नहीं है तो ये ऐसे रखा, 5 से है, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, ये रहा आपका एलसीएम। अभी एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इट इज ऑफकोर्स 2 स्क्वायर इंटू, अरे हाँ ये तो नंबर चाहिए ना मुझे, 8 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 3 120, ठीक है। अभी इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। अभी व्हाट इज दैट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से भी करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, तीनों से करना पड़ेगा क्योंकि तीनों का स्क्वायर नहीं है, बराबर है। सो टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर ब्ला 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 ब्ला, वो आप स्टेटमेंट आप लिख लो खुद से भी, 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 5 2 ज़ा 10, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 30, ठीक है। तो 120 इंटू 30 किया तो 120, देयरफॉर 120 यहाँ इक्वल टू नहीं कर देंगे, तो 120 इंटू 30 3600 है ना, समझ में आ रहा है, इज़ दैट नंबर, ये है आपका रिक्वायर्ड नंबर। ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये मुझे लगता है 60 का स्क्वायर है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑफकोर्स डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 बिकॉज ये एलसीएम का मल्टीपल है। बस काम खत्म हो गया, सिंपल था ना, ठीक है, एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। अभी एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट रह गया ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एज सुन एज वी फिनिश दैट विल स्टार्ट विद द साइंस। हम लोग मैथ्स में बहुत आगे गए क्योंकि कुछ स्कूल में बहुत फास्ट जा रहे हैं, मतलब अभी देखो विबग्योर स्कूल में ही ये टॉपिक खत्म भी हो चुका, ठीक है, इसलिए मैं मैथ्स में थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। साइंस वैसे भी जल्दी समझ में आ जाता है, 1-2 दिन में टॉपिक खत्म हो जाता है, इसलिए मैं मैथ्स में थोड़ा सा आगे चला गया। अभी फिर से हम लोग विल कम बैक टू द साइंस ना फ्रॉम एज सुन एज वी फिनिश द टॉपिक, ये टॉपिक खत्म होती है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू, don't forget to complete the exercise and please send it to me. I have seen many students have stopped sending it to me. Okay, you have to send it to me. Everyone is supposed to send all the complete exercise today. जो exercise number 6.3 पूरा का पूरा मुझे चाहिए आज का आज, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।